Hello dear students, welcome back. I am Shweta and we are studying chapter Enterprise Resource Planning, that is ERP. In last lecture, we have studied what is enterprise, resource and planning. So, in big organization, how to maintain the resources, for that we have to plan each and everything. This chapter is related to that only. So, why we need ERP? So that each and every department in the organization, in big organizations, there are lots of departments, and for that purpose each and every department should know the data of other departments. For that purpose we use ERP softwares. Like we can say which type of softwares we can use. We can use Oracle, we can use SAP. Such type of big softwares will be used for the ERP, so that each and every department gets the record of each and every other department whenever it is required. So today we are going to see functional units of ERP. What is this functional units of ERP? Now only we have discussed that in big organization there are lots of departments. So this various departments, they are the functional units. Means what is their functions? What are the functions of all these departments? That we are going to see one by one. So let's begin. Functional units of ERP. The ERP system helps the management in making the planning process more productive and efficient. What is the use of ERP system? Why we are using ERP system? Because with the help of this system, what will happen? This helps the management in making the planning process. Whatever the management, see, in organizations there is a management team which plans. Okay, so they are doing the planning work, how to make their product more productive, means how their resources or products can be more productive and efficient. More productive means what? Growing their products, how their production can be grown in the market, and how efficient they will be, means how correct and how perfect their method can be, okay, of production. So for that purpose we are using ERP system. तो ERP system का यूज क्यों किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में? जिससे कि मैनेजमेंट इस तरह से प्लान कर सके कि जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होना चाहिए एंड एफिशिएंट होना चाहिए. ओके, इट शुड बी परफेक्ट, इट शुड बी करेक्ट एंड इट शुड बी मोर ऑल्सो. सो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कंपनी को ज्यादा मिलेगा. इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं. मीन्स हर एक यूनिट का कुछ काम होता है, वर्क होता है. सो दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस ओनली, and that is the work of ERP. That's why we are using the ERP system. The entire ERP package contains many modules or subunits. Now see, entire ERP package. Now if you're talking about the software, package means what? Now software actually, okay. So that contains many modules, or we can say subunits. So in our organization there are many departments. बड़ा कंपनी है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे. एचआर का डिपार्टमेंट रहेगा, सेल्स का डिपार्टमेंट रहेगा, परचेस का डिपार्टमेंट रहेगा, फाइनेंस का डिपार्टमेंट रहेगा, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट रहेगा, राइट. सो इस तरह से आपके कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. उसी तरह से ईआरपी पैकेज मीन्स जिस कंपनी को आप बोलोगे कि मुझे सेंट्रलाइज डेटा चाहिए, अगर आपको सेंट्रलाइज डेटा चाहिए तो आपके पास कितने मॉड्यूल्स होने चाहिए? मीन्स आपको हर एक डिपार्टमेंट के लिए मॉड्यूल बनाना पड़ेगा. हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक मॉड्यूल रहना चाहिए. हर एक डिपार्टमेंट का डेटाबेस क्रिएट करना है तो हर एक डिपार्टमेंट का डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हर एक मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे. ओके, हर एक डिपार्टमेंट का डेटा लेना पड़ेगा, उसके मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे. तो ये काम रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का.
जो ये मॉड्यूल्स बना के आपको प्रोवाइड करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो देगा कि अगर आपकी कंपनी ने बोला, आपका बिग ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी कंपनी ने अगर किसी सॉफ्टवेयर वाले को बोला कि मुझे HR डिपार्टमेंट का एक मॉडल बना के दो, मुझे सेल्स का मॉडल बना के दो, मुझे परचेस का मॉडल बना के दो, जितने भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होंगे उतना वो सॉफ्टवेयर वाले को बोलेगा कि आई वॉन्ट मॉड्यूल्स फॉर ऑल दिस departments. Okay, so that is called as what many modules and sub units. Means वो ERP पैकेज में बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे और हम उसे मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं या फिर सब यूनिट्स भी बोल सकते हैं. So I will show you the diagram with different modules and with different, you can say, departments. See, this is the diagram. Here you can say that these are all what departments. See, planning, production planning, this is one department. Plant maintenance, this is one department. Sales and distribution, this is one department. Material management, this is one department. Quality management, this is one department. Manufacturing is one department. Financial management is one department. HR is one department. So all they are having, these are the different departments and they are doing a different works. कोई भी एक दूसरे से रिलेट वर्क नहीं कर रहा है, मीन्स सब लोग अपना अपना ही काम कर रहे हैं. ओके, सो ये सब लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं, इनका सबका डेटा सेंट्रलाइज होना चाहिए. ओके, सेंट्रलाइज अगर डेटा रहेगा तो HR को अगर किसी सेल्स के बारे में पता करना है या किसी मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में पता करना है तो उसको डेटा सेंट्रलाइज्ड मीन्स जो सेंट्रल डेटा रहेगा उसमें से वो डेटा एक्सेस करके देख सकता है किसी और डिपार्टमेंट का डेटा. उसी तरह से कोई भी डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट का डेटा जब रिक्वायर्ड होगा तब वो देख सकता है यूजिंग दिस सेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम. Okay, so these are the departments as well as we can say these are the packages also, means these are the modules also. Okay, these are the different modules which the company is going to get from the software engineer. ERP के जो packages होते हैं तो ये packages आपको बना के मिलेंगे different डिपार्टमेंट्स के लिए या फिर डिफरेंट मॉड्यूल्स बना के मिलेंगे फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. ओके, फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर. Okay, so now what we are going to see, we are going to see one by one units. We are going to see what is the function, हर एक डिपार्टमेंट का क्या रोल है, उनका क्या काम होता है, that we are going to see now. Okay, so let's see one unit. Functional units. The first is financial module. So from the name itself we know what is financial, everything which is related to the finance work, that is the financial module. So this we are going to study first. This module is the core of many ERP software packages. So this is the core. What is the meaning of core? Means important, or we can say the main thing. Okay, so the main part of any organization is which one? Financial. Okay, so financial is the main ERP system. So we can say this has a central part, or we can say the tough part of the of any ERP software packages. Okay, this module, financial module, this module is the core of many ERP software packages. core means what? हाँ, एक तो सबसे पहला ये बहुत important है, ये core है. core means it is a central part, or we can say it is a tough part also. Okay, so this is important and this is toughest part also of any software package. Then it can collect financial data from various functional departments and generate valuable financial reports. So see, it can collect financial data, whatever financial thing is there, financial data from various functional departments. हर एक जो डिपार्टमेंट है, जो फंक्शन में जो काम कर रहा है, उनका वो जो भी रिलेटेड टू द फाइनेंस है, जो भी चीज फाइनेंस से रिलेटेड होती है, उन सबका डेटा वो फाइनेंशियल मॉड्यूल कलेक्ट करेंगे. ओके, एंड इट इज गोइंग टू जनरेट द वैल्यूएबल फाइनेंशियल रिपोर्ट. सो फिर वो जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स रहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट में रहने चाहिए और वैल्यूएबल रहते हैं, वो उसका वो रिपोर्ट जनरेट करके देता है फाइनेंशियल मॉड्यूल. सो व्हाट इज द वर्क ऑफ फाइनेंशियल मॉड्यूल? Financial model, it is going to take what? It is going to collect the data from all the functional departments. जितने भी डिपार्टमेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वो सबका वो फाइनेंस जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है
वो लेगा एंड देन आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द डेटा, फाइनेंशियल डेटा, ये बाकी डेटा नहीं लेगा, ये सिर्फ फाइनेंस का जो भी पैसे से रिलेटेड डेटा रहता है, जैसे कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, तो या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा हुआ, या कुछ भी पैसा आउटगोइंग इनकमिंग जो भी पैसा लग रहा है, या फिर किसी जो डिपार्टमेंट के लिए सैलरी देता है, एवरीथिंग, सो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर व्हाट, फाइनेंस। सो जहां भी मनी रिलेशन का आता है, मनी का जो भी काम होता है, वो रिलेशन का सब थिंग्स फाइनेंशियल मॉडल में आएगा। So everything is going to come under financial model. Every money related thing is going to come under financial model. So financial model का काम क्या होता है, पूरा डेटा कलेक्ट करना हर एक डिपार्टमेंट से, फिर उसका financial report जनरेट करके देना। Financial reports include balance sheet, general ledger, trial balance, financial statements, etc. So financial reports क्या क्या होते हैं, we have seen in the tally also all these things. So कैसे बनाया जाता है financial report, उसमें उन लोग balance sheet include करते हैं, उसमें general ledger होता है, trial balance, financial statement, etc. means we can say profit and loss क्या है वो भी financial report में आता है, right? Then what we have seen, trial balance, balance sheet, financial statement, okay. Then this model also includes financial accounting, investment management, enterprise controlling and treasury. So this model also includes financial accounting. जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, यानी डेली का जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट में आ जाता है। ओके, फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या क्या रहता है, ये ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट तो होता ही है, लेकिन उसके साथ और क्या होता है, उसके साथ और रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मीन्स डेली वॉट एवर डेली थिंग इज गोइंग ऑन, जो भी डेली का चीज होता है उसके बारे में भी वो रिकॉर्ड रखता है। देन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मीन्स अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, वॉट एवर इन्वेस्टमेंट इज डन इन द कंपनी, then for that also, that record is also kept by this module, okay. Then what you can say, एंटरप्राइज कंट्रोलिंग, एंटरप्राइज कंट्रोलिंग मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को जो कंट्रोल करता है उसका भी इसमें ये मॉडल में रहता है, इस मॉडल में वो भी इंक्लूड होता है। एंटरप्राइज कंट्रोलिंग मीन्स हाउ टू कंट्रोल दिस एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन, दैट थिंग इज ऑल्सो मेंशन्ड ओवर देयर। देन ट्रेजरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजरी, व्हाट आर द फंड्स और रेवेन्यू इज देयर, ओके। जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फंड है, या फिर बिल्डिंग, या फिर जो भी प्लेस है जहाँ पे सब इसका ट्रेजर स्टोर किया जाता है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू फंड्स जो भी स्टोर होता है, वो भी सब किसके अंडर आता है, फाइनेंशियल मॉडल के अंदर, ओके। सो फाइनेंशियल रिपोर्ट, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट में सिर्फ बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस या लेजर ही आएगा, उसमें और क्या रहता है, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वॉट एवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डन, जो भी डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी सारा उसमें नोट होता है। देन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मीन्स जो भी इन्वेस्ट किया रहेगा वो भी किस तरह से मैनेज किया रहता है, वो भी इस फाइनेंशियल मॉडल के अंदर इंक्लूड होता है। फिर एंटरप्राइज कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी लगता है, जो भी होता है वो भी इस फाइनेंशियल मॉडल के अंदर आता है। कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट, जो भी खर्चा लगने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट थिंग्स कम्स अंडर दिस फाइनेंशियल मॉडल ओनली, ओके। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी रीडेवलपमेंट करते रहते हैं, उसका जो भी खर्चा रहेगा वो भी फाइनेंशियल मॉडल के अंदर ही आएगा। एंड ट्रेजरी मीन्स व्हाट, ट्रेजरी मीन्स नथिंग बट फंड्स और यू कैन से एनी रेवेन्यू, जो भी कंपनी के फंड्स रहेंगे या रेवेन्यू रहेंगे वो सब भी इस मॉडल के अंदर इंक्लूड हो जाता है, okay. So this is about the financial module. Now let's see the next module. Next functional unit is manufacturing module. Now you know what is the meaning of manufacturing, means whatever the products is manufactured, that thing comes under the manufacturing module. So now let us see what is manufacturing module. It contains necessary business rules to manage the entire production process. So it contains the necessary business rules. Whatever the rules are there for managing the production process, वो rules मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के अंदर आते हैं। जो भी बिजनेस के रूल्स होते हैं कि कौन सा भी प्रोडक्ट
किस तरह से मैनेज किया जाए, वो सारे रूल्स किसके अंदर आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के अंदर। ओके, सो इट कंटेन्स नेसेसरी बिजनेस रूल्स टू मैनेज द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी स्टेप्स लगने वाले हैं, जो भी रूल्स आते हैं, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के अंदर आएंगे। देन this model of ERP enables an enterprise to combine technology and business processes to get integrated solutions. So this model, this manufacturing model of ERP, it enables an enterprise. Means ये organization को क्या, ये organization में क्या काम करता है? It combines technology. Technology means what? Whatever the technology is there, like using the net or using the computers and business processes to get integrated solution. तो ये दोनों को mix करके, अगर technology का use करके हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग किस तरह से बिजनेस में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पस दैट थिंग इज गोइंग टू कम इन द मैन्युफैक्चरिंग मॉडल. सो हाउ टू मैन्युफैक्चर योर प्रोडक्ट्स यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस, दोनों को यूज करके किस तरह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के अंदर आ जाएगा. It also provides freedom to change manufacturing and planning methods as and when required. जब भी जरूरत पड़ेगा तभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग मेथड्स को चेंज कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पस देयर इज अ फ्रीडम. ओके, ऐसा नहीं है कि आपको यही मैन्युफैक्चरिंग के मीन्स यही मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस फॉलो करना है या फिर यही प्लानिंग का प्रोसेस फॉलो करना है. ऐसा ये नहीं रहेगा कि वी हैव टू डू दिस ओनली स्ट्रिक्टली. इट विल बी नॉट लाइक दैट. इट विल बी फ्री. Means we are having the freedom that you can change the manufacturing and planning method as and when required. जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज होता है उस तरह से क्या हो जाएगा, हर एक बात चेंज हो सकती है. तो as per the need of the day or requirement of the day, depending upon that we can change the method of manufacturing and planning. So all this comes under the manufacturing model. Manufacturing model में क्या होता है? It contains necessary business rules to manage the entire production process. पूरे बिजनेस का जो या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके लिए कुछ बिजनेस की रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, वो सब मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के अंदर आएगा. देन नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या बोला कि दिस एनेबल्स एन एंटरप्राइज. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस होता है वो दोनों को एक साथ करके एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज किया जाएगा. उसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी लगने वाला है और कौन सा बिजनेस प्रोसेस लगने वाला है, वो दोनों को एक साथ करके जो भी काम करते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के अंदर आएगा. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स व्हाट, to change the manufacturing. So it depends upon the requirement. जिस तरह से requirement रहेगा उस तरह से हम लोग manufacturing और planning method change भी कर सकते हैं. Okay, we are having the freedom for changing this manufacturing and planning method depending upon the conditions. So this is all about the manufacturing model. Now let us see the next module. So the next unit or next module is production planning. So how to plan the product. प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किस तरह से प्लान किया जाता है, that comes in the production planning module. This model is used for optimizing the utilization of available resources and helps the organization to plan their production. This model is used for optimizing. Now the optimizing the utilization means what? The meaning of this optimizing the utilization is making the best use. Okay, so for making the best use of available resources, जो भी resources available है उसका अच्छे से use करके, best use करके या effective use करके, how to help the organization to plan their production. Means by making the effective or best use of available resources, it is going to help the organization for planning their production. So what is the meaning of this production planning model? इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो भी resources available है, जो भी raw material या जिसका भी resources आपके पास है उसका best use करना चाहिए. जो भी available है आपके पास उसका अच्छे से use करके आपको कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, उस तरह से आपको प्लान करना पड़ेगा.
Okay, so whatever raw material or resources is available with the organization, by making the best use or effective use of that resources, you can plan the production. Okay, so that comes under the production planning module. This module identifies the materials required, allocates optimal resources using data, and sells forecasting with the sales data. दिस मॉड्यूल आइडेंटिफाइज द मटेरियल रिक्वायर्ड. तो ये मॉड्यूल क्या काम करता है कि प्रोडक्शन के लिए कौन सा मटेरियल का जरूरत है, what material is required for this, for the production, then allocates optimal resources. Optimal means what? The best resources, whatever is there, that best resources, और या फिर जो जरूरत है रिसोर्स का, इट इज गोइंग टू एलोकेट दैट रिसोर्सेज यूजिंग डेटा एंड सेल्स फोरकास्टिंग विद द सेल्स डेटा. तो ये क्या करता है कि इट एलोकेट्स ऑप्टिमल रिसोर्सेस, बेस्ट रिसोर्सेस वो एलोकेट करेगा किसका डेटा यूज करके, जो सेल्फ फोरकास्टिंग का जो डेटा होता है. मीन्स व्हाट इज द सेल्फ फोरकास्टिंग, वी कैन से व्हाट एवर द सेल इज देयर इन टर्म्स ऑफ मनी. जो भी हम सेल कर रहे हैं पैसे का इन टर्म्स ऑफ मनी यू आर गोइंग टू सी फॉर द फ्यूचर पर्पस, हम लोग को इससे कितना फायदा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है, वो सब देख के हम लोग सेल का फोरकास्ट देखेंगे कि इसका कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, इसका ये प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन करना चाहिए. डिफरेंट प्रोडक्ट्स है अगर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो किसका प्रोडक्ट किस तरह से सेल होगा. By studying the forecast of that cell data, with the help of that only you have to do the production. Okay, so this model identifies the materials required, allocates optimal resources using data, and sells forecasting with the sales data. So what this model is going to do, क्या आपको प्रोडक्शन के कौन सा मटेरियल का जरूरत है उसका डेटा वो रखेगा, क्या एलोकेट मीन्स आपको रिसोर्सेस के लिए सबसे बेस्ट बेस्ट चीज जो लगने वाला है वो उसका डेटा आपको देगा. देन बाय सीइंग द सेल्फ फोरकास्टिंग विद द सेल्स डेटा मीन्स पहले वो सेल्स का डेटा देखेगा कि कौन सी चीज लोग ज्यादा लेते हैं, कौन सी चीज लोग कम लेते हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेचा जाता है मार्केट में. सो वो पूरे डेटा का स्टडी करेगा, फिर उसका उससे से वो सेल्फ फोरकास्टिंग रिजल्ट बनाएगा कि अपना फ्यूचर में आपको कितना कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा सेल मिल सकता है, किसके ऊपर ज्यादा पैसा मिल सकता है. डिपेंडिंग अपॉन दैट दे आर गोइंग टू प्लान द प्रोडक्शन. ओके, मीन्स किस चीज का प्रोडक्शन हमको करना चाहिए, ओके, किसको ज्यादा फायदा है, उसका सब स्टडी करने के बाद ही उन लोग उसका प्रोडक्शन करेंगे. सो ऑल दिस कम्स अंडर द प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल. Okay, so this is about the production planning module. Now let us see the next module. Next is what? HR module. HR means what? HR stands for human resource. So HR stands for what? Human resource. HR module maintains an updated and complete employee database including personal information, salary details, attendance, performance, promotion, etc. of all employees in an enterprise. So what is the use of this? यहाँ पे सिर्फ क्या काम होता है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं बनता है या फिर कोई सेल या परचेस का काम नहीं होता है. यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग ये काम करना है. मीन्स ह्यूमन रिसोर्स एचआर क्या काम करता है, यहाँ पे वो सिर्फ डेटा मेंटेन्स एंड अपडेटेड एंड कंप्लीट एम्प्लॉय डेटाबेस. यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उसका डेटा किसके पास होता है? एचआर के पास होता है. ओके, एचआर के पास जितने भी एम्प्लॉयज काम करें सब डेटा एचआर के पास होता है. सो मोस्टली आपने ये भी देखा रहेगा कि इंटरव्यूज भी एचआर ही लेते हैं क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट है और किस डिपार्टमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है वो एचआर को पता होता है. सो एचआर हैज द फुल नॉलेज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा काम होता है और क्या रिक्वायर्ड है. ओके, मीन्स अगर किसी पर्सन को या किसी एम्प्लॉय को आपको हायर करना है तो एचआर को पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए. ओके, सो फिर फॉर दैट पर्पस एचआर इज हैविंग व्हाट? द डेटा ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज. सब पूरे एम्प्लॉयज का डेटा किसके पास होता है? एचआर के पास होता है. फिर इंक्लूडिंग व्हाट यू कैन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय का पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी एचआर के पास होता है. सैलरी की डिटेल्स यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम करे सबको कितना सैलरी मिलता है, सारा डेटाबेस, सारे सैलरी के डिटेल्स किसके पास होते हैं? एचआर के पास.
देन अटेंडेंस मीन्स कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, कौन कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट है, कब कौन प्रेजेंट रहता है, कौन एब्सेंट रहता है, सारा अटेंडेंस रिपोर्ट भी एचआर ही मेंटेन करता है. परफॉर्मेंस मीन्स विच एम्प्लॉय इज डूइंग द बेस्ट, गिविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस, कौन वर्स्ट दे रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, कौन बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वो सब डेटा, परफॉर्मेंस का डेटा भी एचआर के पास ही होता है. प्रमोशन मीन्स किस एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलना चाहिए, किसने कितना काम किया, कितना साल हो गया, डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रमोशन एक्सेट्रा, ऑल डेटा ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन एंटरप्राइज किसके पास होगा, एचआर के पास. सो एचआर के पास सारे एम्प्लॉयज का सारा डेटा होता है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सैलरी का डेटा, उसका अटेंडेंस, उसका प्रमोशन, परफॉर्मेंस, सब चीज एचआर के पास रहते हैं. सारे डिपार्टमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट के सारे डेटा एचआर के पास होगा. Okay, so now let us see the another module. Next module is inventory control module. Inventory means what? It is nothing but, inventory is nothing but what you can say, the items. Okay, what are the items are there in the organization which are used for the production purposes. Related to that we are going to see now. This model covers processes of maintaining the appropriate level of stock in the warehouse. So inventory control module means what? Whatever the items are there, yeah, whatever the products is produced by the company, so that how many, what is the level of the stock in the warehouse. Warehouse means what? The place where the items are kept. Okay, जहाँ पे भी आपके raw materials या जो भी production आपकी कंपनी में होता है वो एक प्लेस पे रखा जाता है, उसको warehouse बोलते हैं. ओके, जैसे हम लोग गोडाउन बोलते हैं. सो दैट इज अ प्लेस वेयर द आइटम्स आर केप्ट और द स्टॉक ऑफ ऑल द आइटम्स विल बी केप्ट. सो दिस मॉड्यूल कवर्स द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग. इस मॉड्यूल के अंदर क्या आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल में क्या होता है कि ये सबका मेंटेन करके रखेगा कि कितना स्टॉक लगता है, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टॉक इन द वेयरहाउस, कि स्टॉक कितना स्टॉक आपने वेयरहाउस में रखा है या फिर गोडाउन में कितना माल रखा है, हम लोग बोलते हैं उस तरह से. ओके, सो लेवल ऑफ स्टॉक इन द वेयरहाउस, सो दैट कम्स अंडर दिस इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल. इसका काम होता है वो सबका रिकॉर्ड रखने का. देन it is responsible for identifying the inventory requirements and setting the target of the stock items required. So it is responsible for identifying this inventory control module. This is responsible for identifying the inventory requirements. Means जो भी list of item रहता है उसको क्या जरूरत है, मीन्स किस चीज का जरूरत है, what is the requirement for that item, and setting the target of the stock items required. And whatever the target is there, जो भी टारगेट होता है उसको वो सेट करेगा ऑफ द स्टॉक आइटम्स रिक्वायर्ड. जो स्टॉक आइटम का जरूरत होता है, मार्केट में जिस आइटम का जरूरत है या फिर आपके प्रोडक्शन में जिस स्टॉक आइटम का जरूरत होता है उसका भी वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा. ओके, सो व्हाट एवर द टारगेट इज देयर ऑफ द स्टॉक आइटम्स, that and the list of the requirement, that thing, both things will be kept, that will be responsible by this inventory control module. ओके, सो व्हाट इज द वर्क ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल. ये क्या काम करेगा, ये एक तो आपके गोडाउन में जो भी स्टॉक आइटम्स है या जो भी माल रखा होगा या जो भी प्रोडक्ट है उसको वो बराबर है या नहीं, कितना लेवल है उसका, वो सब उसका रिकॉर्ड इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल रखेगा. ओके, वेयरहाउस में कितना स्टॉक है कितना नहीं है वो सब वो चेक करेगा. देन और फिर से वो और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल, क्या, इट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई, मीन्स इट इज गोइंग टू सी, इट इज गोइंग टू लुक आफ्टर द what number of items are required, and it is going to also set the target of the stock items which is required. Okay, so that these both things are the responsibility of inventory control module. Now let us see the next module. Next is the purchasing module. Okay, so your purchase module helps for generating purchase order, evaluating the supplier and billing. यहाँ पे purchase module का काम क्या होता है, it is helping for generating the purchase order. यानी कोई भी जो कंपनी पर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी कंपनी जो भी हमारी कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से परचेस कर रहा है उसका ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, उसका वो ये मॉडल में आएगा. It is generating the purchase order, then it is going to evaluate the supplier. Evaluate means कितने suppliers हैं, कितने suppliers हम कंपनी से परचेस करने वाले हैं, उसका भी रिपोर्ट परचेस मॉडल के पास रहेगा. एंड बिलिंग,
एंड बिलिंग मीन्स अगर कोई परचेस करे तो आपको बिल देना पड़ेगा, राइट? सो दैट थिंग्स, सो दैट ऑल कम्स अंडर व्हाट? परचेस मॉड्यूल. सो परचेस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या आएगा? परचेस ऑर्डर कि क्या खरीदा है, ओके, कितने सप्लायर्स है, कितने नंबर ऑफ सप्लायर्स आपको सप्लाई कर रहे हैं, और बिलिंग, ओके, और जो भी परचेस किया तो उसका बिल भी रखना पड़ेगा, तो वो बिल भी मेंटेन कौन करेगा? परचेस मॉड्यूल. ओके, सो क्या परचेस किया, परचेस करना है, उसका ऑर्डर, कितने सप्लायर्स है, कितने सप्लायर्स है जिससे हम लोग परचेस कर रहे हैं, ओके, एंड बिलिंग ऑल्सो मीन्स उस जो भी परचेस किया उसका बिल. सो दैट इज गोइंग टू बी मेंटेन बाय द परचेस मॉड्यूल. It is closely connected with the inventory, finance and production planning module. So purchase module ये तीन मॉड्यूल के साथ में ज्यादा कनेक्टेड होता है. किसके साथ? एक तो इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल है, फिर हम लोग ने देखा था फाइनेंस मॉड्यूल जो पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड का रिकॉर्ड रखेगा वो, एंड प्रोडक्शन प्लानिंग जो भी प्रोडक्शन हम लोग प्लान करते हैं उससे रिलेटेड. सो परचेस मॉड्यूल इट इज closely connected with three of the modules which are the inventory, finance and production planning. Okay, so this is also important, you should keep note of this. It can be asked in the objective question that which module is responsible or which module is closely connected with the inventory, finance and production planning module. So that time you should know the answer that it is the purchasing module. Okay, now let's move further. So the next module is marketing module. Marketing module is used for monitoring and tracking customer orders, increasing customer satisfaction and for eliminating credit risk. Now see, what is this marketing module? It is used for monitoring. Means it is going to look after, okay, it is going to keep track of, or you can say it is going to look after the customer orders. Customer ज़्यादा किस प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है उसके बारे में वो देखेगा. फिर इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर किस बात से ज्यादा सेटिस्फाइड है, एंड फॉर एलिमिनेटिंग क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क मीन्स व्हाट? कि अगर कुछ बोरो किया है, ओके, तो जो भी बोरोवर फेलिंग टू मेक द रिक्वायर्ड मीन्स फेलिंग टू गिव द रिक्वायर्ड पेमेंट, अगर किसी ने लिया है और वो पेमेंट नहीं दे रहा है तो वो एलिमिनेट करना चाहिए, फॉर एलिमिनेटिंग द क्रेडिट रिस्क. Okay, means if anyone is borrowing and if that is not going to give the payment for that, okay, so that time that for you should eliminate that thing. Okay, so that is the lookout of the marketing model. Marketing model ये सब चीजों का ध्यान रखेगा. Okay, so marketing module is used for monitoring. So it is going to look after and it is going to keep the track of all the customers, what they order, ज्यादा कौन किस चीज को ऑर्डर करता है, फिर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन किस चीज में मिलता है. कभी कभी मीन्स अच्छी चीज कम पैसे में मिलेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है. ओके, सो नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि महंगा लेके भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है एंड ऑल दैट थिंग्स. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. कस्टमर किस चीज को ज्यादा ऑर्डर करता है उसको किस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलता है, और it is going to see the that nobody is no ऐसा कोई किसी से नहीं होना चाहिए कि कोई पेमेंट नहीं कर रहा है. ओके, सो एवरीवन शुड पे फॉर दैट. इसका that also risk will be eliminated by the marketing module. Okay, so this is only the one thing about the marketing module. Now let us see the next module. Next is the sales and distribution module. This module helps for tracking inquiries, order placement, order scheduling, dispatching and invoicing. Sales and distribution means what? Sale करना means बेचना and distribution means distributing the product to the required customer. So this model helps for tracking inquiries. So it is going to see what are the inquiries. Okay, then order placement means it is going to place the order where it is required. Order scheduling means जहाँ पे जाना है वहाँ पे schedule करना, किस date में किस time पे देना है. Dispatching means the product will be dispatched from one place and it is going to go to the another place. And invoicing means जो भी bill है means उसका जो payment receipt है that is invoicing. So this is the work of sales and distribution model. So what it is going to do? It is going to track the inquiries. Whatever the inquiries are means customers do, that work is done by the sales department. And then order placements, if any customer is ordering anything then they are going to place that order. Then order scheduling means time and date का schedule करेगा कि कब उसको customer को order deliver करना है. Dispatching it, once it is ready then they are going to dispatch it. Then invoicing means at last the payment work is done. Then this model is closely integrated with the e-commerce website of the organization. So
हम लोग ने ई कॉमर्स में पढ़ा था, ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं इट इज रिलेटेड विद दैट। ओके, तो ये जो सब काम कर रहा है, ये जो ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉपिंग का होता है, ये काम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का काम होता है। ओके, सो दैट इज दिस इज क्लोजली इंटीग्रेटेड विद द ई कॉमर्स। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा कि विच मॉड्यूल इज इंटीग्रेटेड विद क्लोजली इंटीग्रेटेड विद ई कॉमर्स, सो यू शुड नो दैट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज क्लोजली इंटीग्रेटेड विद ई कॉमर्स, sales and distribution model. Okay, now let us see the next module. Now the last module is remaining, and that is quality management module. Quality means, you know, quality of the product, how it should be. It should be always good, so you should plan for that. Then it is going to see the quality control also, so that all things comes under the quality management module. So let us see what comes under a quality management module. This model is used for managing the quality of the product. So naturally we can say that it is used for managing the quality. जो भी product है उसका quality maintain रहना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. That all things will be done under the quality management module. The quality management module fulfills the following functions. So it is going to fulfill the following functions. What are they? Quality planning, means किस तरह से quality होना चाहिए उसका हम लोग planning करते हैं. Quality inspection, once they are planned, then they are going to inspect that quality, whether this quality is good or not, or worth or not. Then quality control, then they have see the मीन्स वो ही कंट्रोल रखेंगे, मीन्स हमेशा क्वालिटी का जो भी रहेगा वो अच्छा क्वालिटी रहेगा तो उसको हमेशा वो उसी तरह से रखेंगे. ओके, सो दे आर गोइंग टू कंट्रोल दैट क्वालिटी ऑल्सो. ऐसा नहीं कि आज अच्छा क्वालिटी दिया तो कल वर्स्ट क्वालिटी देंगे. सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल भी क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर आता है. ओके, सो व्हाट इज द वर्क ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल? इट इज गोइंग टू see the what are the functions. They are going to see the quality planning. First they are going to plan the quality what is required, then they are going to inspect that quality, whether that quality is best or not, और जो भी quality बोला था वही है कि नहीं. Then quality control means they are going to maintain that quality forever. Okay, ऐसा नहीं कि आज अच्छा quality दिया तो कल बेकार quality देना है. So that everything comes under the quality management module. Okay, then this is all for today. So we have done with this. So we have seen the 9 modules or 9 units, functional units of ERP, and we can also say that this is the modules provided by the ERP, and these are the departments in your ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. ये ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और इन सबका मॉड्यूल है, इनका क्या क्या फंक्शन है, हर एक मॉड्यूल का, हर एक डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन है वो हम लोग ने आज देखा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and